Hello students, in this video we will continue further with alternating current. So in the previous video we had seen that how do you get alternating current. So जब आप किसी coil को magnetic field में rotate कराते हो तो alternating current produce होता है and usually ये जो alternating EMF होता है इसको लिखा ऐसे जाता है E naught sin omega t plus your initial phase. अब ना मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस लेक्चर व्हाट विल अज्यूम इज ये आपका जो इनिशियल फेज है ये जीरो मान के चलेंगे. So E is equal to E naught sin omega t. Okay. This is the expression that we will use. Okay. अब हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा था कि what happens when you connect that alternating voltage source to a resistor. आपको याद है हमने ये किया था कि we have a resistor that is R and it is connected to an alternating voltage source which is E is equal to E naught sin omega t. तो रेजिस्टर से जो करंट पास होगा I that will be equal to I naught sin omega t. करेक्ट. एंड ये I naught will be equal to E naught divided by R. हम लोग E naught को कहते हैं पीक EMF. हम लोग ये जो I naught है इसको हम लोग कहते हैं पीक करंट. फिर हमने ये भी देखा था हाउ डू यू फाइंड आउट द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस केस. सो हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस केस इज इक्वल टू या power consumed is equal to I RMS square into R. And what is IRMS? IRMS is nothing but your peak current I naught by root 2. Now ये expression हमें किसके लिए मिला था? We had got this expression for sinusoidal voltage and sinusoidal current. Okay. हमने ये भी कहा था कि जब ये ओमेगा टी की वैल्यू, आपको याद है हमने ये ग्राफ्स बनाए थे, तो सो लेट्स से ये ईएमएफ है तो ईएमएफ का ग्राफ मान लो ऐसा है, तो आपका जो करंट है करंट का भी ग्राफ सिमिलर ही होता है, मतलब जीरो वैल्यू, पीक वैल्यू, फिर वापस पीक वैल्यू, जीरो वैल्यू, ये सारी चीजें ये ग्राफ एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच करते हैं. तो ऐसे केस में वी से दैट व्हाट डू वी से दैट करंट एंड ईएमएफ are exactly in phase. Exactly in phase. Okay. So EMF जब अपने पीक वैल्यू पे पहुंचता है तो करंट भी पीक वैल्यू पे पहुंचता है. EMF जीरो वैल्यू पे पहुंचता है तो करंट भी जीरो वैल्यू पे पहुंचता है. So that is why we say that current and EMF are exactly in phase. अब से यहाँ पे you have to just remember this. Okay. When we are talking about alternating current या alternating voltage, आपको इनको ना vectors के terms में treat करना है. Okay, you have to treat them like vectors. So अगर जो आपका EMF vector या आपका current vector ये direction में, तो because current and EMF are exactly in phase, तो ऐसे EMF vector will also be in the same direction. That is phase difference. ये जो angle होता है दोनों के बीच में इसको हम लोग कहते हैं phase difference. So in this case, I can say that the phase difference between the current and EMF is equal to zero. The phase difference between the current and the EMF is equal to zero. ठीक है? Okay. Now we will proceed ahead. अब थोड़ा और हम लोग आगे जाते हैं. Let's proceed further. Okay. Now what we are going to do is we are going to connect an inductor to an AC source. We are going to connect a capacitor to an AC source. और उन केसेस में हम लोग देखेंगे कि करंट और EMF के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. बट आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ चुका है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैड डन इन द प्रीवियस लेक्चर इटसेल्फ. दिस इज समथिंग, दिस इज जस्ट द अनदर वे टू लुक एट करंट एंड EMF. आपने इनको वेक्टर्स की तरह देखो एंड इनके बीच का जो एंगल होगा, दो वेक्टर्स के बीच में हमेशा एक एंगल क्रिएट होता है ना, तो दैट एंगल विल बी नथिंग बट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF. ओके, नाउ वी विल गो अहेड एंड डू दिस. ओके, प्योरली इंडक्टिव सर्किट with AC source. Okay.
Now, when we talk of purely inductive circuit, so you have ये inductor है. This inductor is connected across an AC source. Okay. Now let's say इस AC source को हम लोग E equal to E naught sin omega t ऐसे भी लिख सकता है, या फिर AC सोर्स आपको AC करंट देता है ना, तो आप करंट को ऐसे भी लिख सकते हो, I is equal to I naught sin omega t. ना यहाँ पे ओमेगा क्या होता है पता है? लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज ओमेगा और व्हाट इज ओमेगा ओवर हियर. ओके, ना हमें ये पता है ना पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. सो ओमेगा टेल्स यू हाउ ऑफन पोलैरिटी चेंजेस. ओके, सो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई f और 2 पाई बाय टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड टेल्स यू, ये t आपको क्या कहता है पता है? t आपको ये कहता है कि कितना फटाफट पोलैरिटी रिवर्स हो रही है. मतलब हमें एसी सोर्स में पता है ना, कभी ये एंड पॉजिटिव होता है, कभी ये एंड नेगेटिव होता है, फिर ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, फिर वापस ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है. सो व्हेन आई से टाइम पीरियड इज बेसिकली कि ये पॉजिटिव हुआ, फिर ये नेगेटिव हुआ और फिर वापस ये पॉजिटिव हुआ. तो दो बार जब ये एंड पॉजिटिव होता है तो उसके बीच में जब टाइम इंटरवल होता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ दिस सोर्स. ओके, फाइन. So ये जो आपका AC source है, let me write it as that it will give you AC current which will be of the form I naught sin omega t. Okay. हाँ, मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर साइकिल में ऐसा है कि ये प्लस है, ये माइनस है. सो ये प्लस होगा तो उस साइकिल के दौरान करंट ऐसा जाएगा, तो दिस एंड विल बी प्लस, दिस एंड विल बी माइनस. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? वी विल अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. सो किरचॉफ्स लॉ, द करंट, बिकॉज आपका इसके अक्रॉस ये एसी सोर्स है, ये कंटिन्यूसली आपका करंट चेंज हो रहा है, तो इंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है दैट इज आल्सो चेंजिंग. नाउ व्हेनेवर द करंट थ्रू इंडक्टर चेंजेस, क्या होता है? बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. वो बैक ईएमएफ कितना होता है? इट इज एल डी आई बाई डी टी. बट बिकॉज आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो, राइट, माइनस प्लस, फिर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो, सो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो, तो आई जस्ट राइट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, दैट इज E. This is equal to 0. So therefore I can write EMF is equal to L di by dt. तो आपको करंट पता है, करंट इज गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपका ये जो EMF होगा E, this will be equal to L d of I naught sin omega t by dt. तो ये जो आपका EMF होगा, ये I naught बाहर निकलेगा, L I naught sin ओमेगा t का डेरिवेटिव होगा cos ओमेगा t इंटू ओमेगा. तो ये जो आपका EMF हुआ, EMF इज इक्वल टू L I naught इंटू ओमेगा इंटू cos ओमेगा t. ओके, नाउ आई कैन जस्ट रीअरेंज दिस. इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ. इसको रीअरेंज कैसे करूंगा? आई कैन राइट दिस एज E is equal to L I naught ओमेगा. cos ओमेगा t को हम लोगों ने ऑसिलेशंस में पढ़ा था ना, जब भी कॉस का टर्म होता है, अब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, हम लोगों ने ये वेव्स में भी पढ़ा था. दिस इज व्हाट वी डू. सो आपका जो ईएमएफ होगा, E इज इक्वल टू L I नॉट ओमेगा इनटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. ओके, ना ये वाला जो टर्म है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. सो जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो आपका this would be your peak EMF. So I can write this as E is equal to E naught sin omega t plus pi by 2. जहां पे यहाँ पे I can write E naught is equal to L I naught omega. Okay, so what we are trying to find out is, we are trying to find out कि जब इसमें current was I is equal to I naught sin omega t, तो उस दौरान इसका EMF कितना था? क्योंकि E is basically EMF across this ना. So उस टाइम पे इसका जो EMF था, it was equal to E naught sin omega t plus pi by 2. So अब आप अगर जो दोनों का फेज देखोगे तो आपका जो करंट है, let me write current over here.
करंट का एक्सप्रेशन क्या था? I is equal to I naught sin omega t. So now if you see over here, करंट का जो फेज है दैट इज ओमेगा टी, बट इसका जो फेज है दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू. सो दोनों के फेजेस सेम नहीं है ना, अब दोनों के फेजेस में डिफरेंस है. सो आई कैन से therefore there is a phase difference of there is a phase difference of pi by 2 radians between the current and EMF. So we cannot say that current and EMF are exactly in phase. ये है ही नहीं. There is a phase difference of pi by 2 between the current and the EMF. ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा. Now before I go ahead, यहाँ पे EMF का जो फेज है दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू एंड करंट का फेज जो है दैट इज जस्ट ओमेगा टी. तो EMF का फेज ज्यादा है ना, पाई बाय टू रेडियन से EMF का फेज ज्यादा है. सो I'll say that EMF leads current by pi by 2. by pi by 2 radians. Okay, EMF जो होता है it leads current by pi by 2 radians. I hope this is clear to you. ओके, EMF जो होता है वो करंट को लीड करता है, या फिर आप इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हो. आई राइट इट ओवर हियर. करंट लैग्स EMF बाय पाई बाय 2 रेडियंस. ठीक है. सो इफ नाउ आई हैव टू मेक अ ग्राफ, ये ग्राफ कैसा होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वुड दिस ग्राफ बी. सो अगर जो आपका करंट इस डायरेक्शन में, हम लोग क्योंकि करंट और EMF को वेक्टर्स के टर्म्स में देखेंगे ना, तो आपका जो EMF होता है EMF लीड्स करंट. सो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज बेसिकली द एंगल ओवर हियर. ये आपका हो जाएगा EMF. इसको हम लोग लिखेंगे EL, दैट इज EMF अक्रॉस द इंडक्टर. ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है, इसके अक्रॉस जो ये EMF हम लोगों ने निकाला हुआ है दैट विल बी द सेम EMF अक्रॉस दिस. करेक्ट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. तो हमने जो E निकाला हुआ है, हमने ये निकाला है ना कि इस दौरान, मतलब जब करंट इतना था तब यहाँ पे EMF कितना था, एंड जो EMF यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा. सो दैट इज व्हाई आई कैन राइट दिस एज, ये जो EMF है इसको मैं EL लिख सकता हूँ. EL is basically the EMF across the inductor. Okay, and it leads current by 90 degrees. I hope this is clear to you. Okay, now if we have to make a graph, हम लोग ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, or will we make a graph over here? Okay, so मान लो ये आपका करंट का ग्राफ है. करंट का एक्सप्रेशन था I is equal to I naught sin omega t. तो ये ग्राफ जो है ये इस तरह से ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट होगा. ओके, सो दिस इज योर करंट ग्राफ. अब आप अगर जो EMF का ग्राफ देखोगे तो ये है E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू ना, दैट इज E नॉट कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, इनफैक्ट पीक वैल्यू से स्टार्ट होता है. सो मान लो आपकी पीक वैल्यू E नॉट यहाँ पे है. So this is how the graph would be. फिर यहाँ से it will go this way. Okay. फिर यहाँ से it will go this way. So what you see over here is, जब EMF की वैल्यू पीक होती है तो उस टाइम पे करंट की वैल्यू 0 होती है. जब
ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो जाती है तो आपका जो करंट होता है उस करंट की जो वैल्यू होती है वो पीक हो जाती है. सो यू कैन सी दैट ये जो ग्राफ है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच नहीं करे ना. इट्स एज गुड एज अ शिफ्टेड ग्राफ. ओके. नाउ ऐसे केस में हाउ डू यू फाइंड आउट इन दिस केस, हाउ डू यू फाइंड आउट the power consumed by the inductor or the heat produced? So if I have to find out heat produced in the inductor, so it is simply equal to, okay, EMF across inductor into current across inductor into dt, where t varies from 0 to 2 pi. So this will now be equal to EMF across inductor, मुझे पता है E naught cos omega t होता है. Current across inductor is, I know उस टाइम पे I naught sin omega t into dt. Okay. Now I can write this as this varies from, time varies from 0 to t, capital T, which is basically 2 pi by omega, 0 to t. Okay. Now E naught I naught बाहर निकल जाएगा. Okay. So I write this as sin omega t into cos omega t. तो इसको आप sin 2 omega t by 2 लिख सकते हो ना, into dt, where time varies from 0 to capital T. So this becomes E naught I naught by 2. sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा 0 टू टी. अब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको इस इंटीग्रल ये लिमिट्स पुट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू एज 0. सो आपका हीट प्रोड्यूस्ड इज 0. सो आई कैन से देयरफॉर पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 0. सो when you have a pure inductor कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं करता, उसके अंदर कुछ भी हीट प्रोड्यूस नहीं होती. You have to remember this. Okay. So in this case, तो जो भी करंट इंडक्टर से पास हो रहा है, that current is called as a wattless current. So current passing through the inductor, the inductor is wattless current. That is, it does not consume any power. Okay. वही अगर जो रेजिस्टर हो तो हम लोगों को आंसर मिला था ना, पावर कंज्यूम्ड in one cycle is ERMS into IRMS, that is E naught into I naught by 2. बट यहाँ पे आपको जो हीट प्रोड्यूस्ड या पावर कंज्यूम्ड आ रही है दैट इज इक्वल टू 0. सो इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट पावर कंज्यूम नहीं होती व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स. ओके. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ अ सर्किट दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज, अच्छा बिफोर वी गो ऑन टू दैट हम लोग ना थोड़ी और चीजें देखते हैं. हम लोगों ने ये देखा था कि ई नॉट जो था, ये ई नॉट का हमें एक्सप्रेशन क्या मिल रहा था. ई नॉट का जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा था दैट वाज आई नॉट इंटू एल इंटू ओमेगा ना, हमने अभी निकाला था. आई नॉट इंटू एल इंटू ओमेगा. ओके. सो दिस इज इक्वल टू, अब ना मैं ई नॉट अपॉन आई नॉट लिखता हूं. सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल. बट ईएमएफ अपॉन करंट क्या होता है, वी नो दैट ईएमएफ अपॉन करंट इज अ रेजिस्टेंस. So omega into L, it is some type of a resistance, right? Because EMF upon current is a resistance and we know this is equal to omega L. So ये जो term होता है, it is the resistance provided by inductor to AC current. हमें ये पता है ना, इंडक्टर करंट चेंज होने को अपोज करता है. हाँ, एसी करंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है तो इंडक्टर उस चेंज को अपोज करेगा. तो इंडक्टर क्या करेगा, हमेशा एसी करंट को पास होने से अपोज करेगा, राइट. सो आई रिपीट इट, E upon I means a resistance. Okay, this means a resistance. So omega into L, because we not know that this is equal to omega into L. तो ये ओमेगा इंटू एल इज सम टाइप ऑफ अ रेजिस्टेंस, सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस, करेक्ट. नाउ ये जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस
ओके, ये कौन सा रेजिस्टेंस है? तो हमें ये पता है कि यहाँ पे यू हैव एन इंडक्टर एंड इस इंडक्टर से ये जो आपका एसी करंट पास हो रहा है, तो ये आपका इंडक्टर इस एसी करंट को अपोज कर रहा है. So this is basically the opposition provided by the inductor to this AC current. So इस opposition को हम लोग resistance नहीं कहते, हम लोग एक अलग word use करते हैं, that is inductive reactance. You call this as inductive reactance. And inductive reactance को आप XL लिखते हो. Okay, so I'll write this as therefore XL is equal to omega into L. Now, if you see over here, XL is directly proportional to omega. Omega basically tells you कितनी फटाफट polarity change हो रही है. So polarity जितनी फटाफट फटाफट change होती जाएगी, उतना आपका ये जो resistance होगा, resistance that is provided by inductor, वो resistance उतना ज्यादा होगा. अच्छा, ठीक है, XL की units क्या होंगे? It is nothing but a resistance. तो units जो होंगे वो ohms ही होंगे. Okay. For DC current, what do you mean by DC current? DC current वो होता है जहाँ पे polarity change नहीं होती. So for DC current, I can write omega is equal to 0. So if omega is equal to 0, I can write XL is also equal to 0. So if the current is constant, so I can say inductor provides zero resistance to constant current. And it provides a high resistance to an AC current. AC current है तो इंडक्टर बहुत ज्यादा resistance provide करेगा. I hope this is clear to you. Now we will go on to the next circuit, that is purely capacitive circuit. So let's say you have a capacitor of capacitance C. It is connected across an AC source. इसका जो EMF है, it is E is equal to E naught sin omega t. Now let's say एक particular cycle ऐसी है कि जहाँ पे हाफ साइकिल ऐसी है कि जहां पे दिस एंड इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस एंड इज बिहेविंग सॉरी लाइक अ नेगेटिव टर्मिनल. Now because this is behaving like a positive terminal, this plate will have positive charges, this plate will have negative charges. Okay, so अब Kirchhoff's law अगर जो हम लोग लगाते हैं तो हम लोग Kirchhoff's law कैसे लगाएंगे? Potential difference across this, that is minus Q by C, क्योंकि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो, प्लस E, this is equal to 0. So अब आपका EMF can be written as E naught sin omega t is equal to Q by C. अब आप खुद ही सोचो आप इसको क्या करोगे, आपको करंट चाहिए ना, तो dq by dt जब हम लोग करते तो what we get is current. So I can write Q as E naught into C into sin omega t. So if I take derivative dq by dt, this will give me current I, which is equal to E naught C omega into cos omega t. Okay, so now I can write my current as E naught into C into omega. Cos omega t को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, sin omega t plus pi by 2. अब जैसे हमने प्रीवियस केस में जो जो एनालिसिस किया था वो सारा एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे. सो E naught into C into omega, I can compare this equation with this I naught sin omega t plus pi by 2. तो आपका जो पीक करंट होगा, therefore पीक करंट I naught is equal to E naught into C into omega. ठीक है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, I can write this as E naught upon I naught is equal to 1 by omega into C. Now E naught upon I naught, it is again nothing but resistance. Okay, so 1 by omega C, this is nothing but resistance provided by, so this is nothing but resistance provided by capacitor to
AC source or to AC current. Okay. ना हम लोग इसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, हम लोग इसके लिए वापस वर्ड यूज करेंगे रिएक्टेंस, एंड ये जो रिएक्टेंस होगा इसको कहा जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको लिखा जाता है XC। सो आपका ये जो XC है दिस इज इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू C। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नाउ व्हाट यू सी ओवर हियर इज XC is inversely proportional to ओमेगा। सो आपकी पोलैरिटी जितनी फटाफट फटाफट रिवर्स होती जाएगी, आपका ओमेगा उतना बढ़ता जाएगा, ओमेगा बढ़ता जाएगा तो ये अपोजिशन कम होता जाएगा। सो आई कैन से कैपेसिटर जो होता है ना वो एसी करंट को कम अपोज करता है, क्योंकि ये रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। ओके, सो आई कैन राइट दिस कैपेसिटर provides less resistance to AC current। बट मान लो डीसी करंट है आपका, तो डीसी करंट के लिए बट फॉर डीसी करंट ओके, बट फॉर डीसी करंट जहां पे ओमेगा इज इक्वल टू 0, आप ओमेगा की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो XC इन्फिनाइट हो जाएगा ना। सो आई कैन से कैपेसिटर प्रोवाइड्स infinite resistance to DC करंट। तो वो बेसिकली डीसी करंट को पास होने ही नहीं देता। आप एक्चुअली ऐसे ही समझ सकते हो, कैपेसिटर क्या होता है, दीज आर बेसिकली टू मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटर ना, बीच में इंसुलेटर होता है, तो इट्स एज गुड एज आपका सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, ये जो आपका डीसी करंट है ये आगे जा ही नहीं पाएगा। तो दैट इज व्हाई कैपेसिटर वी से दैट इट प्रोवाइड्स इनफिनिट रेजिस्टेंस टू डीसी करंट। ओके, अब हम लोग फेजर डायग्राम भी बनाते हैं। फेजर डायग्राम कैसा होगा यहाँ पे, सो हमें ये पता है ना, आपका जो करंट I है दैट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, एंड EMF जो है दैट इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ व्हाट यू सी ओवर हियर इज करंट का जो ये फेज है ना, दैट फेज इज मोर देन द फेज ऑफ EMF। EMF का फेज बस ओमेगा टी है, बट करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। So I can say current leads EMF or EMF lags current by pi by 2 radians। ठीक है, it lags current by pi by 2 radians। तो अगर जो आपका फेजर डायग्राम यहाँ पे कैसा होगा, अगर जो आपका करंट ये डायरेक्शन में, तो इंडक्टर के केस में EMF आगे था तो हमने ऊपर बनाया, कैपेसिटर के केस में EMF लैग्स करंट बाय पाई बाय 2, तो EMF को आप पीछे वाले साइड पे बनाओगे। सो दिस इज EMF अक्रॉस कैपेसिटर एंड दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे ग्राफ्स भी बना सकते हैं, यू कैन मेक द ग्राफ्स बाय योरसेल्फ, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। एंड यहाँ पे भी आप देखो ये पैटर्न, आप अगर जो पावर कंज्यूम निकालोगे यहाँ पे, तो पावर कंज्यूम के लिए आप इंटीग्रल या व्हाट डू यू से हीट प्रोड्यूस्ड, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ E इंटू आई इंटू डी टी, तो ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी, ये प्रीवियस इंटीग्रल जैसा ही हो जाएगा। तो आपका पावर कंज्यूम विल ऑल्सो बी 0। सो आई विल से दैट ओके, कैपेसिटर does not consume power। सो पावर बस कौन कंज्यूम करता है, पावर जो है बस रेजिस्टर कंज्यूम करता है। सो देन द क्वेश्चन इज, तो फिर जो आप कैपेसिटर एंड इंडक्टर को पावर सप्लाई करते हो जाती कहाँ पे है,
तो इंडक्टर के अंदर वो पावर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं हाफ एल आई स्क्वायर। एंड कैपेसिटर के केस में भी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना यहाँ पे, विच इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो व्हेन यू हैव प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो इन दैट केस जो होता है कैपेसिटर एंड इंडक्टर डू नॉट कंज्यूम पावर। सो ऐसे सर्किट के अंदर जो करंट होता है उसको हम लोग वापस कहेंगे वॉटलेस करंट। ठीक है। सो आई होप ये जो बेसिक्स है ये बेसिक्स आपको समझ में आ चुका है। मैं ये कहूंगा कि ये डेरिवेशंस आप लोग खुद से करो वापस, ताकि ये क्लियर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक एट अ सर्किट जहां पे ये तीनों चीजें होंगी, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, ठीक है। ओके, चलो देन, बाय एवरीवन, आई विल एंड द सेशन ओवर हियर। ओके, हैव अ गुड डे।